Lunar Lake was formed millions of years ago when a meteorite smashed into Earth. But here's the crazy part. This crater is formed in basalt rock. Most craters on Earth are not in basalt rock. So this is world's one of the very few crater which is in basalt rock, which is formed in basalt rock. So that's the reason why NASA, ISRO, GSI are primarily focused on lunar crater. And the temples around it? Yeah, they are not random. Lunar has two meanings, Lavan and Lon, meaning salt. You can see that the salt present is there in the lake formation of the crater. And the another meaning runs with mythology that Lord Vishnu killed the demon Lonasura. So this is where the science and mythology both shake hands. So what happened here? Now listen carefully. There's a massive asteroid belt between Mars and Jupiter. My scientific hypothesis or some scientific hypothesis states that a large asteroid from this belt may have hit Mars with a massive speed. This impact threw huge fragments into the space from Mars' surface. Some of them escaped the gravitational force of Mars planet, and one of them entered straight into Earth's gravitational field. And boom, lunar lake created. This explains something very important. Why lunar's basalt rocks chemically matches to the rocks found on Mars. Lunar is also known as Mars analog. I'm not calling that. NASA also calls it Mars analog or Martian analog because of the same chemical matching of basalt rocks from Mars and rocks in lunar lake. So this is Gomukhdar. We measured the size of the square. This size is 21 feet 9 inches. If converted in meter, it is 6.629 meters. If this size is multiplied into 100 raised to 3, it becomes 6,629 kilometers. That size is approximately so close to the diameter of the planet Mars. Do you know why this size is equal to the Mars diameter? Because as we all know, those people also know that a crater fall here which was from the planet Mars. The basaltic meteorite that fell here. They also know the resonance with the sizes. And wait, not only this, there are two more kundas here. So why these two kund? You know, Mars also has two moons. Look there. This shows the dimensions of Mars. This another one indicates the first moon of Mars, closer to the planet that is called as Phobos. This is the second stepwell that is situated far from the main stepwell, which indicates the second moon of Mars, which is named as Deimos. You can see that this one is not a square because they don't know the dimension. As the real Deimos moon has a non-circular, non-spherical shape, it is so random in the form. So I am not sure that they know this or not, but they made it in a rectangle shape rather than making it a square shape. स्क्वायर कुंड का या ब्रह्म कुंड का जो इनका मेजरमेंट है वो भी मंगल ग्रह के बिल्कुल डायमीटर से मिलता हुआ है। तो ये बहुत ही रोचक जानकारी है और इसको हम आगे की तरफ लोगों में शेयर करना चाहेंगे। तो ये जानकारी सुन के जैसे सर को आनंद हुआ एंड आश्चर्य लगा, वैसे ही आपको भी लगेगा। मराठी में ना, मराठी में चलते बाकी वीडियो की तरफ। सो स्वागत है आपका दैत्यसूदन टेम्पल में। इस टेम्पल की माइथोलॉजिकल स्टोरीज से स्टार्ट करेंगे अपन कि ये टेम्पल के पीछे गाँव वालों का या पूरे दुनिया का जो मान्यता है वो क्या है। विष्णु भगवान का अवतार था एक दैत्यसूदन नाम से, जिनकी मूर्ति अंदर स्थित है। लोनार इस जगह पे एक लोनासुर नाम के राक्षस का वध किया था। तो जैसे कि आप सब देख सकते हो, ये मंदिर उतना डिटेल आउट नहीं है। तो ये है विष्णु का अवतार दैत्यसूदन एंड इन्होंने लोनासुर का जो वध किया था उस पे वो खड़े हैं एंड इनके हाथ में जो देवी है, अभी मान्यता के हिसाब से ये लक्ष्मी है। मुगल के पीरियड में इस टेम्पल को नष्ट करने जो लोग आए थे उनसे बचाने के लिए इस टेम्पल को ढक दिया गया पूरा मिट्टी से। एक ज़माने में एक महाराज चल रहे थे, मतलब इसके ऊपर से जा रहे थे, तो इनको एक चांदी का कॉइन मिला। तो वो कॉइन देख के उन्होंने गाँव वालों से पूछा कि यहाँ पे कॉइन क्यों है। तो गाँव वालों ने बताया कि इस मिट्टी के ढेर के नीचे एक मंदिर है। तो उन्होंने बोला फिर उसको खोदना चाहिए। तो फिर उन्होंने खोदने के बाद इस पूरे मंदिर को बाहर निकाला। आपको रियल में दिखेगा कि वहाँ पे मिट्टी रखी हुई है और यहाँ पे भी आपको कई सारे पत्थर मिलेंगे। ये इस मंदिर को ढका हुआ था और जब निकाला गया तो ये बाजू में रखे गए और अभी इनको अच्छे से रख के वॉल बनाई गई। इसीलिए आपको ये दिखेगा कि इस मंदिर को अच्छे से कोई शिखर भी नहीं है, ना कोई अच्छी सी डिज़ाइन या मंडपम है। ये बस मंदिर है
जो हाफ ऑफ द टाइम या मेजर ऑफ द टाइम एग्जीक्यूशन के बाद छुपा हुआ था। और मेजर चीज़, जब इस मंदिर की खुदाई हुई, जब इस मंदिर को ढूंढा गया, इसके अंदर कोई भी भगवान नहीं थी, ये इसके अंदर नहीं थे। जो लोकल किंग था उस पीरियड में, उन्होंने इसकी स्थापना की है। जो स्टोरी थी दैत्यसूदन ने लोनार का जो वध किया था, उसके हिसाब से इनकी स्थापना हुई है। सो हाउ डज इट एस्टेब्लिशेस प्रॉपरली? बाहर चलते हैं। सो ये टेम्पल बनाया ही क्यों गया था? अगर ध्यान से देखें तो इसकी जो ओरिएंटेशन है वो ईस्ट फेसिंग है। सो सन राइजेस फ्रॉम दिस डायरेक्शन, बट सेम टाइम पे वेस्ट डायरेक्शन से आपको मार्स भी देखने में मिलेंगे। रियलिस्टिकली भी सन जब ईस्ट से ऊपर आता है तब वेस्ट डायरेक्शन से मार्स विजिबल रहता है। तो दैट्स वाई दिस इज ओरिएंटेड इन अ वे दैट वेस्ट साइड में लोनार का जो सरोवर है, लोनार का जो मीटेओराइट लेक बना हुआ है, उसकी लोकेशन इसके पीछे की तरफ है एंड ईस्ट को इसकी फेसिंग है। इस टेम्पल को जैसे आप देख सकते हो 7 लेयर्स पे बिठाया गया है। तो 7 लेयर्स क्या दर्शाते हैं? अलग अलग सिंबल से, अलग अलग सिंबल से उनको दर्शाया गया है। बट व्हाट आर दे रियली फॉर? सो एज यू नो, अर्थ हैज 7 लेवल्स। सबसे बॉटम में और एक सबसे टॉप में अर्थ क्रस्ट। सो सबसे बॉटम का लेयर, यहाँ पे आपको डायमंड साइंस दिखेंगे। सो डायमंड साइंस आर द हार्डेस्ट सब्सटेंसेस। सो दिस इज द इनर कोर ऑफ अवर प्लैनेट। उसके ऊपर मोर का डिजाइन है इंट्रिकेट पैटर्न से, ठीक है? तो ये आउटर कोर ऑफ द अर्थ। तो उसके बाद यहाँ पे आपको काव के पंजों के निशानों का डिजाइन दिखेगा, उसको गौपदी बोलेंगे। दिस इज द 3rd लेवल, इट इज फॉर लोअर मेंटल। उसके बाद आपको ये चौथा लेयर दिखेगा नीचे से, इसमें आपको डक के डिजाइन है, स्वान या डक कुछ भी बोलो। तो ये एस्थेनोस्फीयर है। उसके ऊपर जाएंगे तो लोटस के डिजाइन से डिटेल लोटस के डिजाइन मिलेंगे अपने को। ये 5th लेवल नीचे से ऊपर तक, ये दर्शाता है लिथोस्फेरिक मैंटल के डिजाइन को। तो ये 6th लेवल है, यहाँ पे कीर्तिमुख डिजाइन बना है, कीर्तिमुख। तो दिस लेवल यू विल फाइंड इन द ओशन क्रस्ट, ओशनिक बॉटम में जो लेवल रहता है अपने अर्थ के लेवल्स में, तो ये ओशनिक बॉटम है। उसके बाद ह्यूमन सिंबल्स है, ह्यूमन स्कल्पचर्स बनाए हुए अलग अलग एक्शंस में, अलग अलग फेस्टिवल्स के मतलब इमोशंस दिए। तो दिस जस्टिफाइज द अर्थ क्रस्ट लेवल। So this is the way this whole temple justifies or talks about our earth planet. Diamond represents the hardest layer of our earth. Peacock के डिजाइंस में आप देख सकते हो ये मोर की बॉडी एंड ये ऊपर इसके फिर पंख फैला हुआ है। This layer has the magnetic field in it and this is the layer which protect us from sun's radiation. काव के फुटप्रिंट्स जैसा दिखेगा आपको, मजबूत फाउंडेशन की तरह एस्टेब्लिश होता है। तो इन सब का एक फाउंडेशन सेट करने वाला ये लेयर है लोअर मैंटल कर। ये जो डिज़ाइन बनी है इसके पीछे ये रीज़न है कि जैसे हंस की एक खूबी रहती है, दूध और पानी को सेपरेट करने की काबिलियत रखता है, तो उस काबिलियत के हिसाब से, उस फीचर के हिसाब से ये जो चौथा लेयर है अर्थ के लेवल्स में, सो इस लेयर के अंदर अर्थ का मैग्मा जो मेल्टेड होता है वो ऊपर आता है। इट्स लाइक दिस लेयर creates a divisional part between the hard rock and the liquid substances. So why lotus? कमल का डिज़ाइन क्यों बना है यहाँ पे? So कमल का डिज़ाइन ये जस्टिफाई करता है कि it's like God sitting on the lotus. So God means earth. So earth के ऊपर जितनी भी सारी प्रकृति है, the whole nature sits on this layer. So just इस लेयर से जो liquid substance, जो मैग्मा ऊपर आता है, तो वो भूमि में कन्वर्ट होता है। So this भूमि is represented with a lotus symbol. अर्थ के लेयर्स में नीचे से ऊपर तक ये 6th लेयर है, ये कीर्ति मुख का सिंबल है। तो ये मुख आपको मंदिर के द्वारों पे दिखेगा। ये क्यों करते हैं? तो इससे मंदिर की बाहरी नेगेटिव ऊर्जा से रक्षा होती है। तो उसी तरह से 6th लेयर ऑफ अर्थ, दैट इज द ओशनिक क्रस्ट, कूल्स राइजिंग लावा इनटू सॉलिड ग्राउंड एंड पानी को भीतर पास होने से आपको यही क्रस्ट बचाएगा। एंड जो अंदर का जो पूरे लेयर्स है अर्थ के इनर लेयर्स, उनका प्रोटेक्शन भी इसी लेयर की वजह से होता है। तो इसीलिए कीर्तिमुख के द्वारे इस लेयर को दर्शाया गया है जो मंदिर की रक्षा करता है और जो अर्थ की ओशन क्रस्ट में रक्षा करता है। इस लेयर पे हमारे कर्म, उत्सव और सभ्यता इसी लेयर पे होती है। तो ये लेयर इन शॉर्ट हमारे कर्मों का मंच है। दिस इज द 7th लेयर, द अर्थ क्रस्ट लेयर। डिटेल स्कल्पटिंग दिखती है आपको पीछे की साइड को, सामने की साइड को थोड़ी डैमेज है, पर पीछे आप जैसे आप देख सकते हो सारी कार्विंग, सारा स्कल्पचर जैसे का वैसा रखा हुआ है। ऊपर आपको देखने मिली सूर्य देव की मूर्ति जो कि लोनार सरोवर को फेस थे। लोगों को लगता था कि ये सूर्य देव का मंदिर है क्योंकि यहाँ पे सूर्य देव की मूर्ति उनको मिली थी, पर ये सूर्य देव का मंदिर नहीं था। तो जैसे मैंने बोला था कि ईस्ट की तरफ से सनराइज होता है एंड वेस्ट की तरफ में मार्स का इम्पैक्टेड एक लेक है, मार्स के इम्पैक्ट से बना हुआ लेक है। तो ये सूर्य देव की मूर्ति भी उसी लेक को फेस करती है। So this is how sun that oppositely faces Mars planet
इट्स शोन हियर। एक इंटरेस्टिंग बात, सूर्यदेव की मूर्ति के पैरों में आप हमेशा जहाँ भी आपको मिलेगी वहाँ पे देखोगे तो आपको फिंगर्स नहीं दिखेंगे, ऐसा लगता है कि उन्होंने सच में जूते पहने। तो अभी फिर से चलते हैं अंदर। So this is the evil meteorite, this is the protector Vishnu, and this is the one he protected from. इनको लक्ष्मी बोलेंगे, अभी लोग इनको लक्ष्मी बुलाते हैं, हम इनको भूदेवी बुलाएंगे, the goddess of earth. तो अभी मंदिर का आर्किटेक्चर अपन साइंटिफिकली समझेंगे। अभी अगर हम ये बात सोचे ठीक से, विष्णु भगवान ये सब थोड़ा भूल जाते हैं, एंड उस जमाने के लोगों का प्रॉपर अपन जैसे अभी मार्स का डिकोडिंग किया, मार्स का लोनार के साथ कनेक्शन किया, वैसे इस टेम्पल का उसके साथ क्या रिलेशन है वो अभी देखेंगे। तो एज्यूम करते हैं या कंसिडर ही कर लेते हैं कि दैत्यसूदन इज द प्रोटेक्टर अगेंस्ट द इविल। तो लोनासुर को कंपेयर करेंगे मीटेओराइट से। मीटेओराइट आया, उसने अर्थ को हानि पहुंचाई, मतलब तो एक असुर मीटेओराइट को रिप्रेजेंट करेगा। तो उस असुर से प्रोटेक्ट करने के लिए विष्णु भगवान आए। विष्णु भगवान ने दैत्यसूदन का अवतार लिया और उन्होंने अर्थ की रक्षा की। इस घटना को मंदिर स्थापत्य के माध्यम से दर्शाया गया है। फिर ये टेम्पल्स जो एस्टेब्लिश हुए वो ये दर्शाते हैं कि यहाँ पे मार्स से कुछ आया था या लोनासुर का जो वध था। जब मैंने गूगल अर्थ से मेजर किया इस मंदिर का डिस्टेंस, लोनार धार के सेंटर से इस मंदिर के सेंटर तक यानी कि गर्भ तक, वो आता है 636 मीटर। सो 636 मीटर अर्थ के रेडियस से मैच कर देता है डायरेक्ट, एंड सेम डिस्टेंस goes closer to the diameter of Mars. Then again what I did, लोनार जो लेक है उसका पूरा रेडियस या डायमीटर बोलो तो लोनार क्रेटर का डायमीटर आता है 1.2 किलोमीटर, विच हाफ्स जो कि है 660 मीटर। सो अगेन दैट आल्सो साइज इज रिलेटिंग टू द मार्स डायमीटर, एंड दैट आल्सो साइज रिलेटिंग टू दिस टेम्पल डिस्टेंस फ्रॉम लोनार धार। अगेन गूगल अर्थ से ढूंढने पे और एक मंदिर मिला, हनुमान मंदिर। हनुमान मंदिर का डिस्टेंस लोनार धार से 660 मीटर आता है। So that distance again goes closer to the diameter of Mars. So गोमुख कुंड अकेला ही नहीं है जो मंगल से रिलेट करता है। मार्स के इम्पैक्ट से जो चीज़ यहाँ पे बनी है नेचुरली, उस चीज़ से रिलेशन में प्राचीन स्थपतियों ने पूरा लोनार ही बना दिया। सारे टेम्पल्स हर चीज़ से लिंक होते हैं प्रॉपरली इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, इन टर्म्स ऑफ साइजेस एंड इन टर्म्स ऑफ हाउ दे आर ओरिएंटेड। तो उसके बाद ये मंदिर किस देवता का था? तो 7 levels of earth, हाउ विष्णु प्रोटेक्टेड अर्थ अगेंस्ट लोनासुर, क्योंकि मंदिर के अंदर भी जो बाद में स्थित मूर्ति है विष्णु भगवान ने हाथ रखा है भूदेवी पे, लोनासुर के ऊपर वो खड़े हैं। तो ये सब दर्शाता है कि ये मंदिर भूदेवी का ही मंदिर है।